श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to you all joining this session. We are at chapter number 5, Karma Sannyas Yoga, Srimad Bhagavad Gita, verse number 08. Lord Krishna says, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वप्नन् श्वसन्. And continued with the next verse, प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्. Now Lord Krishna says, नैव किंचित करोमीति means नैव किंचित करोमीति. Yukto, who is yukta? That one who is connected with God, who is well absorbed in God, that is yukta. So the person that is the meditator who is absorbed in God. Tattvavid, that means the thinkers manyet, consider him that person does nothing. Naiv kinchit karomi iti. Na iv kinchit karomi iti. That person does nothing. So, tattvavid, that means the thinkers consider that meditator, that the person who is well absorbed in God does nothing. ज्ञानी जन मानते हैं कि वह व्यक्ति जो भगवान से युक्त है वह सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता. What are the things that person does but does nothing? That is pashyan, while seeing does nothing. Shrinvan. Okay, now while seeing, pashyan, seeing the world, that person does nothing. Pashyan Shrinvan, the person who is hearing does nothing. While hearing everybody, every sound, each and every sound of the world, that person does nothing. Pashyan Shrinvan, person while touching, Jighran while smelling does nothing. Ashnan, that means eating, Gachan while going, Swapnan Swasan, while sleeping, and while Swasan, breathing. So whatever are our Nitya Karma, daily duties, while performing those duties, that person does nothing. वो अपने नित्य कर्मों को करता हुआ भी और नैमित्तिक कर्मों को करता हुआ भी कुछ नहीं करता. What are the other things that such meditator performs? So, Pralapan while talking, Visrajan while releasing the waste of the body, Visrajan, Grahanan while receiving, Unmishan, Nimishan api while opening and closing of eyes, that person does nothing. Indriyani indriyarthesu vartant iti dharyan, and that person considers that these our senses are only entangling or performing with the objects of senses. ऐसा भक्त ये मानता है कि इंद्रियों के अर्थों में खुद को बरत रही हैं और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं. सो जब दो मुंजियों में हो खटपट तो अपने बचने की फिक्र कर झटपट. यहाँ पर जो भक्त है वो स्वयं को आत्मा मानता हुआ दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में स्थित है. तो वो ये जानता है कि इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थों में बरत रही हैं और ये हमारे शरीर के कार्य हो रहे हैं, ऐसा सोचता हुआ वह स्वयं को कर्ता नहीं मानता. द मेडिटेटर, द युक्त, हु इज वेल एब्सॉर्ब्ड इन गॉड,
does not consider himself as a doer. He is free from doership while performing day-to-day acts. Now, the literal meaning is this: remaining absorbed in self, the knower of reality should think, I certainly do nothing while sleeping, hearing, touching, smelling, eating, moving, breathing, speaking, releasing, holding, opening and closing the eyes, remembering that the organs functions in relation to the object of the organs. Hence, that person is free from doership. Now, the next verse is 5.09. So it was a 5.08 and 5.09 combinedly I have explained. So 5.10. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमवाम्भिसा. Brahmanyadhaya karmani, the person who is the bhakt, who is adhay, brahmani adhay. So adhay means dedicating. The person who dedicates karmani, all his work to God, brahmani, that means to God. The person who dedicates all the functions, all the work to God, sanga tyaktva, and is free from its fruits or results. Though the person is doing all the work, but is free from any result, then why such person is doing work? It is later on explained in this verse. So the person, the meditator, the yukta, brahmani adhay, is dedicating his work to God, संग त्यक्त्वा, और उसकी वो अपने कर्मों को प्रभु को समर्पित कर देता है, संग त्यक्त्वा, संग यानी आसक्ति. So he is not attached to tyaktva, that means abandoning all the attachment to the work also and to its result also. Karotiyah, that person who does the work in such a manner, lipyate na sa papen padma patramivambisa, and that person does not, lipyate is affected by or mired with papen, sin. That person is not mired with sin because that person has dedicated already. That person knows by root that these all functions, the all works are performed by Lord itself. So that person is not the stakeholder of any work and its result. That person is instrumental to God. That person is yukta. That person does the work for refinement of soul. That person does not do the work for for the pleasure of senses. So ऐसा व्यक्ति जो भगवान से युक्त है, वो आत्म शुद्धि के लिए कार्य करता है, इंद्रियों के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए, मन के सुख के लिए, या बुद्धि को पुष्ट करने के लिए या संतुष्ट करने के लिए कार्य नहीं करता. वो भगवान के लिए कार्य करता है. भगवान के लिए कैसे? जब हम आत्म शुद्धि के लिए कार्य करते हैं तो ये भगवान को सबसे प्रिय लगता है. अन्यथा भगवान तो स्वयं में पूर्ण है, उनको हमारे किसी भी समर्पण की या किसी भी चीज की आकांक्षा नहीं है. वो स्वयं में, द गॉड इज परफेक्ट एंड कंप्लीट, एंड गॉड डज नॉट डिजायर एनीथिंग फ्रॉम अस. However, when we do something for refinement and purification of our soul, that is very much liked by God. So that person who is attached to God, who is yukta, that person brahmanyadhaya karmani sang tyaktva karoti yah lipyate na sa papen padma patramevambisa. Lipyate na sa papen, that person is free from sin
वह व्यक्ति उसको पाप लिपायमान नहीं होते, क्योंकि न उसका कर्म है न उसका कर्म का फल है, और यही बांधने वाले होते हैं. सो इन दिस वे all the samskar, all the traces of work, so will not bind that person, and hence the sin will not bind that person. How it will not bind? Like Padma Patram iv ambhasah, like the lotus leaf kept on water is not linked with or wetted by water. जैसे कि कमल पत्र पानी में पड़ा हुआ भी गीला नहीं होता, उसी प्रकार से सभी कर्मों को करने वाला कर्मयोगी भी कर्मों से, कर्मों के फल से या उसके संस्कार से बंधता नहीं है. क्यों? क्योंकि वह भगवान से युक्त है, वो भगवान के लिए कार्य कर रहा है और आत्मशुद्धि के लिए कार्य कर रहा है. सो दैट पर्सन is free from sin, and that person releases, keep on releasing the bondages and tentacles and chains of the body. So that soul ultimately releases all the tentacles. So अपनी जंजीरों को खोलता हुआ चला जाता है. वो अपने लिए नई जंजीरें नहीं बनाता, वो अपने पुराने संस्कारों को खोलता हुआ चला जाता है और मुक्त होकर अल्टीमेटली इज गोइंग टू सबमर्ज इन गॉड सून. So the literal meaning of this is one who acts by dedicating actions to Brahman, that means to God, and by renouncing attachment, he does not become polluted by sin, just as the lotus leaf is not by water. Here the lotus leaf is the good example. Lotus leaf is also known as pankaj, pank plus ja, the flower which is though propagated in mire, it is propagated in dirty water, punk, in mud, but then also is not linked with, attached with, or wetted by mud. So that is very good example. The person who is karma yogi, who is yogi, even propagated in this world, full of sins, but that person is free from sin because of righteous outlook. उसका सही दृष्टिकोण उसको इस संसार में रहते हुए भी, सभी कर्मों को करते हुए भी उसको बंधन से मुक्त करता चला जाता है. जैसे कि हम चाकू से चाहें तो गले की रस्सी काट लें या चाकू से गला काट लें. सो दैट पर्सन प्रॉपरली यूटिलाइजेस द इम्प्लीमेंट्स टू फ्री द बॉन्डेजेस ऑफ सोल. So frees the soul so that it ultimately submerged to super soul. Now, next verse is 5.11. कायेन मनसा बुद्धया केवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्मशुद्धयः. Lord Krishna says, कायेन मनसा बुद्धया केवलः इंद्रियः अपि, that person does work by कायेन, body. That person does work by body, does not involve soul in it. Soul is purely a viewer, soul is purely a drishta, observer, and that person does the work, uses body, intellect, mind, and our senses. These all four instruments are used by that soul for refinement only. That soul, that person, that observer is not involved in it. These are the tools. User is somebody else. User is soul. And these are the tools. Four are the tools. Like body is the tool, like intellect is the tool, mind is tool, and our senses are tool. So these tools are utilized at different levels by that yogi, by that karma yogi. कायेन मनसा बुद्धया कैवलेन्द्रियैरपि. So that person does work from body. वह व्यक्ति शरीर से, वह भक्त शरीर से कार्य करता है. मनसा, मन से कार्य करता है. From mind, that person does work from body, from mind. बुद्धया, whenever there is requirement of intellect,
that person does work from intellect. Kevalah indriya api, and at certain times does work from senses. युक्त व्यक्ति शरीर से कार्य करता है, मन से कार्य करता है, बुद्धि से कार्य करता है और इंद्रियों से भी कार्य करता है. योगिनः कर्म कुर्वन्ति, and that person, the yogis does the work. Yoginah karma kurvanti, yogis does work. Sang tyaktva atma shuddhaya, sang tyaktva atma shuddhaya, that yogi does work abandoning attachment, atma shuddhaya, and for refinement of soul. योगी व्यक्ति आसक्ति को छोड़कर आत्म शुद्धि के लिए कार्य करते हैं, शरीर से, मन से, इंद्रियों से और बुद्धि से. योगी व्यक्ति आत्म शुद्धि के लिए कार्य करते हैं और शरीर के सुख के लिए नहीं. नाउ द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्स इज, by giving up the attachment, yogis undertake work merely through the body, mind, intellect, and even the organs for the purification of themselves. Now, God, Lord is perfect. Lord says that सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सभी लोगों का सुहृद हूं. Though I am perfect and does not desire anything, मैं स्वयं में पूर्ण हूं और किसी से कुछ नहीं चाहता, फिर भी मैं भक्तों का हितु हूं, ऐसा भगवान कहते हैं. तो भक्त को क्या करना चाहिए? भगवान को सबसे अधिक प्यारा है जब हम आत्मशुद्धि के लिए कार्य करते हैं. वो हमको आत्मशुद्ध करके अपने गले लगाना चाहती है. तो जो हमारी माँ है, जो हमारा भगवान है, तो सबसे अधिक प्रिय है कि हम उसके परायण हो जाएं, अपने कर्मों को उसके लिए करें और उसकी बात माने. तो उसकी बात यह है कि जल्दी से जल्दी साफ होकर हम उसी के गले लग जाएं. सो योगी कैसे काम करता है? वो अपने कायेन, शरीर से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों को बरतता हुआ. These are the things to be utilized. We should not get involved in it. These are the instruments given to us. It is bestowed to us by our master of evolution. ये चीजें हमको वरदानित हैं. जैसे किताबें हैं, तो किताबें हमको पाठशाला में दी जाती हैं. The books are provided to us so that we get evolved, so that we get better intellect. However, those books are ultimately to be left to get the new books. जब हम एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं तो पुरानी किताबें छोड़नी पड़ती हैं. ऐसे ही शरीर को, मन को, बुद्धियों को भी एक स्तर पर जब ये अनुपयोगी हो जाते हैं, इनका हमें उपयोग करना है. इनको इनके आनंद के लिए नहीं उपयोग करना है कि किताबें अच्छी रहें तो बंद करके रख दो. ऐसा नहीं करना है. We have to utilize this properly and ultimately leave it to get the newer books. And this is a kind of circle. ये एक प्रकार की कड़ी है जिसमें जन्म, मरा, मरण, फिर जन्म, ऐसे होता चला जाता है. सो योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धया. That means yogi, yukta, does the work only for refinement of the soul. Yogi understand that pursuing material desire in the pursuit of happiness is futile, as chasing the mirage desert. If somebody is thinking that we the common people are thinking that only the pleasure of senses is important, however it is mirage, because this is ephemeral. ये सारी चीजें जो अगर हम शरीर के सुख के लिए कार्य करते हैं, ये क्षण भंगुर है. And what is eternal? The soul is eternal. जो हमारी आत्मा है वो नित्य है, हमेशा रहने वाली है, इटर्नल है, शाश्वत है. So we should do work for the eternity, for the eternal, and not the things which are ephemeral. So yogi does not do the work for ephemeral things. योगी क्षण भंगुर शरीर के लिए कार्य नहीं करता. वो बुद्धि की संतुष्टि के लिए, मन के तुष्टि के लिए या इंद्रियों के सुख के लिए भी कार्य नहीं करता. As realizing this, they renounce selfish desire and perform all the actions for the pleasure of God, who alone is Bhoktaram
Yagya Tapasam, who is only the supreme enjoyer of all the activities. Whatever activities are done by it, ये ईश्वर की लीला है और वो इसको देखकर आनंदित होता है. भोक्तारम यज्ञ तपसाम, वॉट एवर वी डू इज अल्टीमेटली rejoices the God. So we should do it for our God only. However, in this verse, Shri Krishna brings a new twist to Samarpan. He says the enlightened yogis perform their work for the purpose of purification. How then do the works get dedicated to God? How our work goes to God? The fact that God needs nothing from us, He is Supreme Lord of everything that exists. God is perfect and complete. What can a tiny soul offer to Almighty God? However, there is one activity that is in our hand and that is not in God's hand. What is that? That is the purification of our own heart. When we purify our heart and engage it in devotion to God, it pleases Him more than anything else. भगवान को कुछ हमसे नहीं चाहिए, सब कुछ भगवान के हाथ में है, लेकिन एक चीज हमारे हाथ में है कि हम आत्म शुद्धि के लिए कार्य करें. जब हम आत्म शुद्धि के लिए कार्य करते हैं, वही नृसिंह अवतार जो कितने कुपित थे हिरण्यकश्यप के इतने सारे कुकर्मों की वजह से, वो भक्त प्रहलाद के उनके चरण पकड़ लेने से कितने सहज हो जाते हैं. सारे देवता, ब्रह्मा, शिव, सभी लोग भयभीत हैं कि नरसिंह भगवान को किस प्रकार से शांत करें. तो वो प्रहलाद से बोलते हैं, बेटा तुम उनके भक्त हो, तुम जाकर उनके चरण स्पर्श कर लो. उस स्पर्श मात्र से वो भगवान सहज हो जाएंगे. वो इस बात से नाराज थे भगवान के उनके भक्त को कितना दुख दिया हिरण्यकश्यप ने, और जब भक्त प्रहलाद उनके पैरों को स्पर्श मात्र करता है, वो मोम की तरह पिघल जाते हैं. तो भगवान को सबसे अधिक प्यारा क्या है? उनको सबसे अधिक प्यारा है कि जब हम उनके लिए कार्य करते हैं, जब हम अपने आत्म शुद्धि के लिए कार्य करते हैं, हम खुद ही उस सवाल को करने का प्रयास करते हैं. हर समय ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान तुम ही करा दो, हमें क्या आता है, तो टीचर क्या तुम्हारे ही पीछे लगा रहे. जब हम स्वयं प्रयास करते हैं उस प्रभु के मिलने का, जब एक शिशु बार बार गिरता है, माँ की ओर चलने के लिए तड़पता है, फिर गिरता है, ये माँ को कितना आह्लादित करता होगा, ये शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता. माँ तो तत्पर है, लेकिन शिशु का एक पहला कदम जो माँ की ओर चलता है, वो उस जननी का जन्म देना सफल कर देता है कि मैंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो मेरी ओर आने के लिए लालायित है, गिर रहा है, पड़ रहा है, लेकिन हार नहीं मान रहा है. वैसे ही जब हम अपने प्योरिफिकेशन के लिए, आत्मशुद्धि के लिए कार्य करते हैं, तो ये आत्मशुद्धि क्यों है? क्योंकि हम भगवान से मिलना चाहते हैं, हमारी तड़प है उससे मिलने की. हम खिलौनों को नहीं देखते. वी डू नॉट सी whatever are the pleasures of senses. We do not see the pleasure of mind, the intellect. We do not see the pleasure of body. We are doing it only for purification of soul, so that it ultimately submerges to super soul. ये भगवान को बहुत पसंद है, भगवान को प्रिय है कि हम खुद से प्रयास करें उससे मिलने का. और जब हम एक कदम दौड़ते हैं तो माँ 10 कदम दौड़ती है. इस तरीके से so there is the one activity that is in our hand and not in God's hand. That is the purification of our heart. When we purify our heart and engage in it in the devotion to God, why we purify? So that it is devoted to God. Ultimately हम हर कर्म भगवान को अर्पित इसलिए कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी साफ हो जाएं और जल्दी से जल्दी अपनी माँ से मिल जाएं. ये भगवान को बहुत प्रिय है, जैसे भक्त प्रहलाद नरसिंह भगवान को बहुत प्रिय है. Realizing this, the great yogis make the purification of their heart as the foremost goal, not out of the selfishness, rather for the pleasure of God. They do it for the pleasure of God, कि हमारे भगवान प्रसन्न हो जाएं, इसलिए वे आत्मशुद्धि करते हैं. जब हम सब भगवान को समर्पित करते जाते हैं तो यही आत्मशुद्धि का कारण है, यही उपाय है कि हम उनके इंस्ट्रूमेंट होकर के, उनके यंत्र होकर कार्य करें. भगवान को ये प्रिय है. Thus the yogis understand that the biggest thing that they can give to God is the purity of their own hearts. They work to achieve it.
वैसे तो हमारे द्वारा शुद्ध की हुई आत्मा अंत में तो आत्म कृपा तो होती ही है, लेकिन अंतिम तो भगवत कृपा ही होती है। तो हम जितना थोड़ा मोड़ा अपने आप को साफ कर पाते हैं, फिर भगवान कृपा करके हमको पूरी तरीके से निर्मल करके अपने गले लगा लेते हैं। लेकिन अपना तो हमें करना ही होता है। तो जो आत्म प्रयास है वो आत्म शुद्धि का ही प्रयास है। शरीर के आनंद के लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन भक्त आत्मशुद्धि के लिए जीता है, युक्त आत्मशुद्धि के लिए जीता है। द वर्स 5.12 युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। Lord Krishna says, Yuktah karma phalam tyaktva, that person who is resolved in God, who is absorbed in God, devoted to God, karma phalam tyaktva, abandoning all the fruits of all the results of activity, abandoning all the activities of work, जो युक्त है वो कर्म के फलों का त्याग कर देता है। कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति एंड अटेन्स द पीस नैष्ठिकीम विच इज एवरलास्टिंग। जो कर्म के फलों का त्याग कर देता है उसको कौन आकुल कर सकता है? उसको ना अच्छा बांधेगा ना बुरा बांधेगा। दैट पर्सन हु abandons the fruits, the result of work, what can bind that person? वो आप्त काम है। दैट पर्सन इज आत्मन्येव आत्मना तुष्टा, वो आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट है, क्योंकि वो अपने प्योरिफिकेशन के लिए कार्य कर रहा है। उसको कर्म के फल नहीं बांधते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भू माते संगो अस्तु अकर्मणि। सो दैट कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पर नहीं। कर्मण्येव इव अधिकाराते मां फलेषु कदाचन, योर राइट इज नॉट ऑन द फ्रूट्स और रिजल्ट्स। तुम्हारा फल पर अधिकार नहीं है, कर्म पर है। मां कर्म फल हेतु भू, तू कर्म के फल वाला मत बन, कर्म को फल के लिए मत कर। माते संगो अस्तु अकर्मणि, और इसलिए अकर्मण्य भी मत बन कि जब फल ही नहीं मिलना है तो चुपचाप बैठे रहो। तू कर्म कर, लेकिन आत्मशुद्धि के लिए कर, तू फल के लिए मत कर। सो व्हेन वी डू इट फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सोल, so it is very much pleasing our God. युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। Such person who abandons the result of work, such युक्त person, that absorbed person, नैष्ठिकीम्, वो शांति को प्राप्त कर लेता है, which is everlasting. That person ultimately attains happiness, the peace which is everlasting. जो व्यक्ति भगवान से युक्त है वो कर्म के फलों का त्याग करते हुए नैष्ठिकीम, वो शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते, एंड दैट पर्सन हु इज अयुक्त, दैट मीन्स नॉट यूनाइटेड विद गॉड, जो भगवान से युक्त नहीं है, काम कारेण, वो काम्य कर्म करता रहता है। जबकि भक्त नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म करता है, वो कामना से युक्त कर्म नहीं करता। लेकिन जो अयुक्त है, जो भगवान से नहीं जुड़ा है, जो सांसारिक मोह बंधनों में है, अभी वो छोटे पादान पर है, आगे चलकर युक्त हो जाएगा। अयुक्त काम कारेण, वो काम में कर्म करता है, कर्मों को कामना से प्रेरित होकर करता है, वो सकाम कर्म करता है, वो निष्काम नहीं करता। अयुक्त काम कारेण, द पर्सन डज द वर्क under the motivation of its result. The person who is not attached to God does the work under motivation of its result, that this work will achieve me this result like this, so I should do it for pleasure of my body, for pleasure of senses. We should do it, and full-fledged, that person also does it full-fledgedly. However, it attains him, it result for the pleasure of this physical things like our body, mind, soul. For does phale sakto nibadhyate, and ultimately get bound by its fruits। और ऐसा व्यक्ति
इसके फल से बंध जाता है। जो अयुक्त है वो कामना के वशीभूत होकर कार्य करता है और अंततः इसके फलों से बंधता है और मन में भी इसके संस्कार बना लेता है, जो आगे चलने पर हमारे बंधन का कारण होते हैं और जन्म और मरण और पुनर्जन्म का भी कारण होते हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्स इज गिविंग अप द रिजल्ट ऑफ वर्क बाय बिकमिंग resolute in faith, one attains peace arising from steadfastness. One who is lacking in resolute faith, being attached to result, under the impulsion of desire, becoming bound. How it is to be understood that performing the same action, some people are bound to material existence and others are released from material bondage. So, ऐसा कैसे हम माने कि काम तो सब वही कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो बंधते हैं और कुछ उसी काम को करते हुए खुलते हैं। दिखने में प्राइमा फेसी व्हेन वी सी, प्रथम दृश्या जब हम किसी चीज को देखते हैं तो योगी भी इसी संसार के कार्य करता है, और जो अयोगी है, जो भगवान का भक्त नहीं, वो भी संसार के ही कार्य कर रहा है। लेकिन एक मुक्त होता जा रहा है, एक युक्त होता जा रहा है, संसार से युक्त, बंधनों से जुड़ता चला जा रहा है। how it is possible? Externally, by nature of work, how can we consider that one is getting free from bondage and other is getting linked with extra bondage? एक तो कड़ियों को खोलता चला जा रहा है और दूसरा नए बंधनों को, नई जंजीरों को जोड़ता चला जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है जब दोनों एक ही प्रकार के सांसारिक कार्य कर रहे हैं? Now Sri Krishna gives the answer of this. Those who are unattached and unmotivated by material rewards are never bound by karma, but those craving rewards and obsessed with desire to enjoy material pleasure become entangled in the reaction of work. Those who are unattached are never bound by karma. जो इससे अनअटैच्ड है, जैसे कि एक नौकर है किसी दुकान का, उसको क्या लेना देना कि आज दुकान में फायदा हुआ या नुकसान हुआ। वो शाम को मजे से दुकान बंद होने पर इधर उधर घूमेगा फिरेगा, रोज ऐसा करेगा, जिस दिन फायदा भी होगा नुकसान भी होगा, क्योंकि वो मालिक के लिए कार्य कर रहा है, उसको लेना देना नहीं है कि क्या हो, उसकी ठेकेदारी नहीं है। और वहीं पर जो ये सोचेगा कि आज दुकान में नुकसान हो गया तो वो शाम को गमगीन होके बैठेगा, दुखी होके बैठेगा। सो वी शुड डू इट ओनली फॉर गॉड। वी आर हियर नॉट द कॉन्ट्रैक्टर्स। हम यहाँ ठेकेदार बनकर नहीं आए हैं, ये भगवान का पसारा है, हम भगवान के यंत्र मात्र हैं। तो हम उस कार्य को करें जो आना है, जो नहीं आना है, इट विल कम एंड गो एंड अल्टीमेटली वी कीप ऑन इवॉल्विंग। हमारा आगे इवोल्यूशन होता चला जाएगा, विकास होता चला जाएगा, यही मुख्य है। शरीर को आनंद मिलना, दुख मिलना, ये सब मुख्य नहीं है। प्रश्न कठिन भी आते हैं, सरल भी आते हैं, हम सिर्फ प्रश्नों का आनंद लें और उससे मिलने वाले ज्ञान का आनंद लें। The word yukta means united in consciousness with God. It can also mean not wanting any reward other than the purification of heart. हमें अपने कर्मों के लिए कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ आत्मशुद्धि ही चाहिए। तो कर्म से आत्मशुद्धि ऐसे होती है कि कर्म को भगवान को अर्पित कर दें, ये मन में कहीं ना हो, बोलते समय बोलते तो हैं पर मन में कहीं ना हो कि ये हमने किया है, ये सब भगवान ही कर रहा है, भगवान ही करा रहा है। जैसे कि लास्ट क्लास में भी हमने कहा था कि सभी लहरें, सागर में उठने वाली सभी लहरें वो अंततः सागर ही हैं। तो वो लहर बदनसीब है जो खुद को सागर से जुदा मान बैठी है। सागर तो है ही, लेकिन वो लहर बदनसीब है, और एक लहर का दूसरी लहर से कहीं ना कहीं अंदर से तारतम्य भी है, वो जुड़ी हुई है, और वो सब सागर ही है। अंततः वो लहर जब शांत होती है तो सागर बन जाती है। तो ये भगवान का विलास है, इसमें कुछ हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हमें मिलना है। मिलना ये एक तरीके का हम इम्पोज कर रहे हैं, अपने ऊपर दबाव डाल रहे हैं, ये ईश्वर का ही विलास है। हम ये सोचना छोड़ दें कि हम अलग हैं, यही अपने में काफी है कि हम सागर। हमने मान लिया है कि हम जुदा हैं, इसलिए हम जुदा हैं। हम सोचे ना, और ये भी ना सोचे लहर कि हमें सागर में मिलना है, ये भी दबाव डालता है। जितने हम मुक्त होते जाएंगे, विचार शून्य होते जाएंगे, हम स्वयं ही सागर हो जाएंगे, हम वही हैं। जैसे घट पानी में रहता है
तो अंदर भी पानी रहता है, बाहर भी पानी रहता है। तो घट का पानी ये सोच ले कि हमारा पानी निजी है, बाहर का अलग, ऐसा कैसे हो सकता है? सो वी शुड थिंक दैट वी आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड एंड नथिंग एल्स, दिस इज सफिशिएंट। कुसुम मौसी, भजन कौन गा रहा है आज? हम गा दें? हाँ गा दीजिए, आप गा दीजिए गीता जी। गीता बहन गा रहे हैं। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है, अपनी अपनी पूर्णता से पूर्ण हर व्यवहार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है, पूर्ण से पैदा हुआ है, इसलिए जग पूर्ण है। पूर्ण था पहले भी सब कुछ, आज भी सब पूर्ण है। पूर्ण सौदागर का अपना पूर्ण कारोबार है, अपनी अपनी पूर्णता से पूर्ण यह संव्यवहार। पूर्ण से यदि पूर्ण शेष क्या रह जाएगा, शेष जो कुछ भी बचेगा पूर्ण ही कहलाएगा। पूर्ण घटता है न बढ़ता, एक रस एक सार है, अपनी अपनी पूर्णता से पूर्ण हर व्यवहार है। प्रभु जगत में जगत प्रभु में, दूरियां इनमें नहीं। तीनों कालों में थकता नहीं, पलक चिन्ह में नहीं। पूर्ण प्रभु का न्याय जग में, पूर्ण प्रभु का प्यार है, अपनी अपनी पूर्णता से पूर्ण हर व्यवहार है। पूर्ण प्रभु तो ज्ञानता में, ज्ञानता में पूर्ण है। जड़ जगत में श्रेष्ठता और ज्ञानता में पूर्ण है। पथिक दोनों का यहाँ सीमा सहित विस्तार है, अपनी अपनी पूर्णता से पूर्ण हर व्यवहार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण है संसार है, अपनी अपनी पूर्णता से पूर्ण हर व्यवहार है। श्री राम। ये शिव कुमार, आवाज नहीं आ रही बेटा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। न तोऽहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिमा
प्राणिनामातनाशनम। ओम शांति शांति शांति। तेरी इच्छा पूर्ण हो मां, हम सब तेरी शरण। राम राम भैया जी, राम राम दीदी, राम राम भैया जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमदः, that means पूर्णमदः अपूर्णमिदं, that is divine consciousness is पूर्ण, अपूर्णम इदम, and whatever is manifested, भगवान पूर्ण है और भगवान के द्वारा बनाया यह संसार पूर्णम इदम, ये संसार भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्ण, पूर्णम उदच्यते, एंड दिस इज वॉटएवर, पूर्ण में से अगर पूर्ण को घटा दिया जाए तो भी पूर्ण ही बचता है। पूर्ण से पूर्ण मादाय पूर्ण में वावशिष्यते, और पूर्ण में अगर पूर्ण जोड़ दिया जाए तो भी पूर्ण ही रहता है। इस प्रकार से इसका ये अर्थ बताया गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हम तो इस ज्ञान गंगा में गोते लगा रहे हैं, आनंद ही आनंद है। और ये एंथुजियास्टिक परिवार के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारा शुभकामनाओं सहित आशीर्वाद है, जो कि प्रातः नित्य ही हम लोगों को नियमित रूप से ज्ञान गंगा में गोते लगाने का अवसर मिल रहा है। बहुत सुंदर। और कितनी सुंदर गीता के माध्यम, श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से, कि भाई हम आत्म शुद्धि के लिए कार्य करना है और कुछ हमें जरूरत नहीं है कि हम इसके लिए करें उसके लिए, केवल एक ध्यान रखें कि हमें आत्म शुद्धि के लिए काम करना है। एक ही बात को कितने सुंदर तरीके से शिव कुमार ने समझाया। गीता में भगवान ने बताया है, उसी बात को प्रैक्टिकल व्यवहार रूप में विस्तृत करके समझाना बहुत अच्छी बात है। शिव कुमार, बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद। और गीता बहन, आपने भी आनंद ही आनंद दे दिया। पूर्ण है, सब कुछ पूर्ण है, अपूर्ण है ही नहीं तो चिंता किस बात की। बहुत सुंदर, बहुत राम भैया, आपको भी प्रणाम, विजय जी सबको, भगवत राम प्रेमियों राम। को नमन, सत। आज हमारा नया साल है ना, पूर्ण हो गए सब लोग। आपका पोता भी पूर्ण है। हाँ। धन्यवाद।